Hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay. Good morning, everybody. The topic today we are dealing with is national and international food agencies. So what we are going to discuss today is national and international food agencies which are controlling the food quality and nutritious values of the food. So national and international food agencies में आज हम basically 5 agencies के बारे में पढ़ेंगे. That is Central Food Training Research Institute, that is CFTRI. Food and Agricultural Organization, that is FAO. NIN, that is National Institute of Nutrition. Food Safety and Standard Authority of India, FSSAI. CARE, that is Cooperative for Assistance and Relief Everywhere. And last is National Institute of Public Cooperation and Child Development, that is NIPCCD. These are the national and international food agencies which are working towards the quality and quantity and nutritional values of the food. So now, basically, what is food control? The food control agencies are the regulatory activity enforced by national or local authorities to provide consumer protection and ensure that all foods during production, handling, storage, processing, and distribution are safe. So what is the function of food control agencies? They have to identify and they have to regulate the activities which enforces by the national and local authorities. जैसे some are international food agencies and some are national agencies. So national agencies which are being implemented by government of India, and international authorities means who are implemented by WHO, UNICEF. They are इंटरनेशनल फूड एजेंसीज. तो इंडिया में नेशनल फूड एजेंसीज क्या क्या है आपकी? नेशनल फूड एजेंसीज है NIN, NIPCCD एंड CFTRI आर नेशनल, और इंडियन फूड कंट्रोल एजेंसीज. तो द मेन फंक्शन ऑफ दीज food control agencies, or these are the regulatory bodies which regulates the consumer protection, and they help in providing the better production, handling of the food, storage of the food, processing and distribution of the food has to be safe and fit for the human consumption. मतलब जो हमारी फूड एजेंसीज होती हैं उनका काम क्या होता है कि जो भी हमारा फूड प्रोडक्शन हो रहा है, फूड हैंडलिंग हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, हाउ द फूड इज बीइंग स्टोर्ड, और प्रोसेसिंग कैसे हो रहा है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, इन सब के ऊपर नजर रखने का काम या इन सबको रेगुलेट करने का काम होता है फूड कंट्रोल एजेंसीज का. फाइन. नेक्स्ट इज व्हाट अ फूड कंट्रोलर. जो फूड कंट्रोलर्स हैं वो क्या काम करते हैं और फूड कंट्रोलिंग एजेंसीज का मोटिव क्या है. So it reduces the increasing burden of foodborne illnesses and new and emerging foodborne hazards. यानी कि जो फूड कंट्रोलर्स हैं एंड जो आपके फूड कंट्रोलिंग एजेंसीज हैं उनका मेन मोटो क्या है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिक्रीज डाउन द इंक्रीजिंग बर्डन ऑफ फूडबॉर्न डिजीज. तो फूडबॉर्न डिजीज का मतलब है when the food is getting contaminated by water, by air, by preparation, by storage और by transportation, any means. जो फार्मिंग हो रही है वो प्रॉपर नहीं है, या वाटर सप्लाई फार्मिंग के लिए प्रॉपर नहीं है, वो कंटामिनेटेड है, या फूड किसी तरीके से जो ग्रेन्स है, जो आपका अनाज है, जो ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, जो भी चीजें आपकी प्रोडक्शन में है, अगर उनके अंदर किसी भी तरीके का कंटामिनेशन हो रहा है and due to contamination the food is causing illnesses in the human being, so that disease condition is known as your foodborne illnesses. So the main function of the drug controller, food controller is to decrease down the increasing burden of foodborne illnesses. जो food की वजह से illnesses हो रही हैं उनके burden को decrease down करने का main motto है food controllers का. Then to enhance the rapid changing technologies in food production, processing and marketing. To enhance the rapidly changing technologies. तो you know इंडिया में और फॉरेन कंट्रीज में आजकल बहुत सारी फूड प्रोडक्शन मशीनरीज हैं, फूड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज हैं. जैसे क्रॉपिंग पहले क्या होता था मोस्ट ऑफ द टाइम कि जब फार्मिंग होती थी तो जो बड़े बड़े फार्म्स होते थे, जो बड़े बड़े फील्ड होते थे, उनको मैनुअल उनकी क्रॉपिंग होती थी, मैनुअल उनकी कटाई होती थी. बट अभी क्या है, टेक्नोलॉजी ऐसी बन गई है कि मैनुअली नहीं करके वो मशीनरी से
जो मशीन्स हैं उनसे कटाई होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि मैन पावर भी कम यूज होती है, प्लस जो मैनुअल एनर्जीज थी वो भी लेस हो जाती है, वो भी कम हो जाती है। तो फूड कंट्रोलर्स का फर्स्ट फंक्शन है आपका टू डिक्रीज डाउन द इंक्रीजिंग बर्डन ऑफ फूड बॉर्न डिजीज एंड टू एनहांस द रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजीज। अब रैपिडली चेंजिंग आपके जो टेक्नोलॉजीज है उनको और ज्यादा एनहांस करना। नेक्स्ट फंक्शन है टू डेवलप साइंस बेस्ड फूड कंट्रोल सिस्टम, टू डेवलप साइंस बेस्ड फूड कंट्रोल सिस्टम, दैट इज योर बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की वजह से क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, किस तरीके का डीएनए किस तरीके के फूड के साथ में मैच किया जाए तो उससे किस तरीके का आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये क्या है आपका बायोटेक्नोलॉजी। जैसे बायोटेक्नोलॉजी के टमाटोज बनते हैं, ब्रिंजल बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज को साथ में फ्यूजन करा के उनका नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो ये है आपका साइंस बेस्ड फूड टेक्नोलॉजीज। So to enhance the development of science-based food technologies. Next, international food trade and need for horizontalization of the food safety and quality standards. So next motto क्या है, to increase down the international food trading. International food trading का मतलब export and import of the food material from foreign countries and to the foreign countries. तो ये हो गए इसके functions. Next आते हैं आपके type of एजेंसीज। तो मैंने जैसे आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंसीज है, हमारे नेशनल फूड एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल फूड एजेंसीज हैं, जैसे आपका CFTRI हो गया, FAO हो गया। FAO इज फूड एंड ऑर्गेनाइजेशनल फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट फेडरल और इंटरनेशनल फूड एजेंसी इज FAO, इनको हम डीप में पढ़ेंगे। तो फूड FAO is defined as Food and Agricultural Organization of United Nations, ये UN का है। Then what are the functions? It helps to improve agriculture because agricultural organization है, forestry, fishery practices and encouraging good nutrition and food safety. तो basically जो food FAO है उसका objectives क्या है, to help improve agriculture से जो हमें grains मिलते हैं, pulses मिलते हैं, different type के vegetables मिलते हैं, उसको increase down करने के लिए, उसको increase करने के लिए। So FAO का मोटो क्या है, FAO का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू हेल्प टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री फॉर एनिमल्स, जो हमारे एनिमल्स हैं, क्योंकि फॉरेस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हो रहा है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से बहुत ज्यादा फॉरेस्ट काटे जाते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ, हर रोज ट्रीज को शट डाउन किया जाता है, कट डाउन किया जाता है। तो उसके लिए FAO का मेन मोटो है टू इंक्रीज द फॉरेस्ट्री एंड फिशरी प्रैक्टिसेस, टू एनकरेज द or to ensuring good nutrition and food security. This is the objective of FAO. The next is the FAO emergency prevention system for food safety emerges as the important constituent of the food and food organizational system. That means जो हमारी FAO है वो daily basis पर and जो नीडी लोग हैं उनके लिए डिफरेंट काइंड का और डिफरेंट लेवल्स पर उनको फूड सप्लाई करते हैं। द मेन एम ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल फूड सेफ्टी टूवर्ड्स द चिल्ड्रन, फूड सेफ्टी टूवर्ड्स चिल्ड्रन, यानी कि जो मेन एम है हमारे FAO का, उसका मेन एम क्या है, टू प्रोवाइड एंड कंट्रोल फूड सेफ्टी टूवर्ड्स चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन जो हैं वो प्रोन होते हैं इन्फेक्शंस के लिए। तो फूड बॉर्न डिजीज है, वाटर बॉर्न डिजीज है, एयर बॉर्न डिजीज है, उनसे प्रिवेंट करने के लिए FAO इज वर्किंग टुवर्ड्स द फूड कंट्रोल एंड सेफ्टी। ओके, सो नेक्स्ट है आपका NIPCCD and DFRL. तो what is DFRL? The Defense Food Research Laboratory is the Indian Defense Laboratory of DRDO. यानी कि जो हमारा DRDO है उसका ब्रांच है DFRL, that is Defense Food Research Laboratory. तो DRDO क्या है, Defense Research and Development Organization, and DFRL, that is Defense Food Research Laboratory, is a part of DRDO. It is located in Mysore, Karnataka, and it conducts the research and development of technologies and products in the area of food sciences and technology. तो हमारा DRDO क्या है? DRDO is Defense Research and Developmental Organization. DRDO का भी पार्ट है Defense Food Research and Laboratories,
And the main function of DFRL is to conduct research and maintain the development of technologies and products in the area of food science and technology. तो जैसे इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट होता है, हर साल कुछ ना कुछ नया टेक्नोलॉजीज आते हैं फूड में, फूड बॉर्न डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए, वाटर बॉर्न डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, फिर न्यूट्रिशन किस तरीके से प्रोवाइड किया जाए उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज एंड प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं। उन पॉलिसीज एंड प्रोटोकॉल्स को फिर जनरल पब्लिक में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, उनको किस तरीके से डेवलप करना है, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। तो ये सब हमारा आता है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट एंड इसके अंदर जो भी रिसर्च होने हैं वो सारा फंक्शन डिपेंड करता है हमारे DFRL, दैट इज डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी। So what is the vision of DFRL? DFRL's vision is to be a technological leader in excellence in food research and product development. तो vision क्या है? Main vision is to be the technological leader in excellence in food research and product development. तो इंडिया में जितने भी नए नए फूड प्रोडक्ट्स डेवलप होते हैं, फिर पहले जो चीज आता था वो बंच में आता था, चीज पैकेट्स आते थे पहले, अभी चीज स्लाइसेस आती हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर सिंगल यूज। पहले जो आता था वो पूरा का पूरा बटर जैसा आता था। अभी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मशीनरीज के साथ में डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च हो रहे हैं, उन रिसर्च के साथ में अभी चीज को क्या है वो स्लाइसेस में आने लगा है। तो ये फूड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है। तो मेन विजन ऑफ DFRL क्या है? to be a technological leader in excellence in food research and product development. तो क्या इंडिया में प्रोडक्ट डेवलप करने हैं, उसका इंटरनेशनल लेवल पर क्या सपोर्ट होगा, उसका इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से उसको यूज किया जाएगा, इंडिया में किस तरीके से यूज किया जाना है, फिर किस तरीके से वो ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा होगा, अगर उसमें कोई हजार्ड्स हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए तो उसको कैसे डिस्कार्ड आउट करना है। तो ये सब DFRI के विजन्स हैं। देन मिशन क्या है? टू डिजाइन, डेवलप एंड इवेलुएट सेफ न्यूट्रिशन। टू डिजाइन मतलब प्रिपेयर करना है कि किस तरीके से कौन से फूड्स अच्छे न्यूट्रिटिव होते हैं, कौन से फूड्स न्यूट्रिटिव नहीं होते हैं, जंक फूड को किस तरीके से मिनिमाइज करना है और न्यूट्रिशनल फूड्स को लोगों तक किस तरीके से पहुंचाना है। तो दैट इज डिजाइन, डेवलप एंड इवेलुएट। डिजाइन जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैंने आपको जब मेन्यू प्लान पढ़ाया था तो मेन्यू प्लान में जब उस टाइम मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपने मेन्यू प्लान करना है कि मॉर्निंग में क्या चाहिए, लंच में क्या लेना है, इवनिंग में क्या लेना है। तो दैट इज डिजाइन और दैट इज प्लानिंग, यू आर प्लानिंग। फिर आता है आपका प्रिपरेशन। सपोज एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मॉर्निंग में आपने डिसाइड किया सैंडविच लेना है। अब सैंडविच के लिए आप किस तरीके से प्रिपेयर करोगे, ब्रेड्स होने चाहिए, फिर आपका जो भी चीजें आपने खानी है, मेयो लेनी है या फिर आपने जैम लेना है, किसी भी तरीके से जो भी चीजें हैं, तो आपने पहले प्लान किया, डिजाइन किया, उसके बाद उसको डेवलप कर रहे हो, बना रहे हो, और उसके बाद उसको इवेल्युएट कर रहे हो। इवेल्युएट मतलब आप खाना खाने के बाद में उसको सोच रहे हो, मतलब आप बोलते हो ना कि ये तो अच्छा बना है या इसका टेस्ट अच्छा नहीं आया, तो दैट इज इवेल्युएशन। तो मिशन ऑफ DFRI इज टू डिजाइन, डेवलप एंड इवेल्युएट सेफ न्यूट्रिशन, to design, develop and evaluate safe nutrition which is supplied to the humanity or which is supplied to the society. तो ये उसका मेन मिशन एंड विजन था। विजन क्या है? टू बिकम एज अ टेक्नोलॉजिकल लीडर, एंड मिशन क्या है? टू डिजाइन, डेवलप एंड इवेलुएट द सेफ न्यूट्रिशन टूवर्ड्स द ह्यूमैनिटी और सोसाइटी। तो ये हो गया आपका मिशन एंड विजन ऑफ DFRI। उसके बाद आता है आपका एरियाज ऑफ वर्क। अब ये DFRI DRDO के अंडर रहकर किस किस एरियाज में वर्क करता है। तो फर्स्ट एरिया इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो फूड नए नए किस तरीके से फूड्स प्रिपेयर करने हैं या कौन सी स्पीसीज को फ्यूजन करके उनका क्या नया प्रोडक्ट बनाना है, ये फूड टेक्नोलॉजी आता है, फूड साइंस है। तो देयर शुड द DFRI is working towards the research and development in food science and technology. Then second आता है आपका studies in the development of convenience food, preservation of food, food safety, food packaging and studies in the spoilage of food and safety of processed food. तो processed food कौन कौन से होते हैं आपके? जैसे पैकेट फूड्स आते हैं आपके, कैंड फूड्स आते हैं, ये सब प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स मिक्स होते हैं। तो जिनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स मिक्स होते हैं वो आपके प्रोसेस्ड फूड होते हैं। तो पहला फंक्शन था रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
दूसरा फंक्शन है स्टडीज इन द डेवलपमेंट ऑफ कन्वीनियंस फूड। कन्वीनियंस फूड मीन्स जो इजीली अवेलेबल हो। तो मार्केट में इजीली आपके फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, फिर आपकी वेजिटेबल्स बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट काइंड के हमारे ग्रोसरी शॉप्स होते हैं, वहाँ डिफरेंट तरीके की चीजें आपको इजीली डेवलप हो जाती हैं, इजीली अवेलेबल होती हैं। तो DFRI इज वर्किंग टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ कन्वीनियंस फूड, जो इजीली कन्वीनियंटली हमें मिल जाए। देन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, कैसे उसको प्रिजर्व करना है, फूड सेफ्टी कैसे करना है, फूड को पैकेजिंग कैसे करना है। सपोज आप मार्केट से प्रोसेस फूड लेके आ गए हो, प्रोसेस फूड आप लेके आए, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मकेन्स होते हैं, उनको हमेशा फ्रीजर में रखना पड़ता है। तो अभी उनका फूड पैकेजिंग एक बार आपने ओपन कर लिया, पूरा पैकेट आपने फिनिश नहीं करना है, हाफ ऑफ द पैकेट को यू आर यूजिंग एंड हाफ ऑफ द पैकेट यू आर कीपिंग इन द फ्रिज अगेन। सो नाउ what how you have to prepare for the food packaging, क्योंकि आप उसको ऐसे खुला नहीं रख सकते, उसके अंदर पूरा आइसिंग हो जाएगी, तो उसको खुला नहीं रखना, किस तरीके से नेक्स्ट टाइम पैकेज करना है, किस तरीके से उसको स्टोर करना है। तो दीज आर द थिंग्स द DFRI इज डेवलपिंग टुवर्ड्स। देन नेक्स्ट आएगा आपका प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ प्रोसेस्ड फूड। नाउ जो हमारा DFRI है वो क्या कर रहा है कि देयर रिसर्च हो रहा है कि किस तरीके से प्रोसेस्ड फूड को प्रोसेस करना है और उनका सप्लाई करना है। जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं ना, जैसे आपका पैकेट फूड्स हो गए, आपके चिप्स हो गए, या आपके स्नैक्स हो गए, ये सब आपके प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं। तो इनको न्यूट्रिटिव किस तरीके से इनका प्रोडक्शन करना है कि अगर बच्चे, क्योंकि जो बच्चे हैं वो ज्यादातर आपके प्रोसेस फूड्स ही लेते हैं, कैंड फूड्स लेते हैं, चिप्स हो गया या स्नैक्स हो गया, वो घर का खाना कम खाते हैं, ये सारी चीजें वो ज्यादा खाते हैं। तो उनको किस तरीके से बच्चों के लिए या बाकी और जो भी इंडिविजुअल उनको ले रहा है, किस तरीके से उनको न्यूट्रिटिव बनाना है, उसके अंदर किस तरीके का न्यूट्रिशन ऐड करना है और उनको किस तरीके से मार्केट में सप्लाई करना है। देन नेक्स्ट आएगा आपका टॉक्सिकोलॉजिकल, न्यूट्रिशनल एंड बायोकेमिकल स्टडीज। टॉक्सिकोलॉजिकल मतलब क्या क्या चीजें बॉडी के लिए हार्मफुल है, न्यूट्रिशनल मतलब क्या क्या चीजें बॉडी के लिए न्यूट्रिटिव है, एंड बायोकेमिकल मीन्स if suppose a person is taking some kind of particular food and what is the chemical reaction happening in the human body, that is known as chemical reaction। जैसे हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो HCl होता है वो वर्किंग टूवर्ड्स द फूड प्रोडक्शन, फूड मेटाबॉलिज्म। जो HCl है वो हमारे फूड मेटाबॉलिज्म के लिए काम करता है। तो बॉडी के अंदर जाके प्रोटीन्स का डिवीजन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का डिवीजन होता है, फैट्स का डिवीजन होता है, तो ये फूड मेटाबॉलिज्म होता है। HCl का मेटाबॉलिज्म और HCl का फंक्शन टुवर्ड्स द फूड इज नोन एज बायोकेमिकल रिएक्शन। तो फूड के वजह से क्या क्या टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या क्या फूड पॉइजनिंग में होता है, उसको स्टडी करना, क्या क्या न्यूट्रिशनल वैल्यूज फूड के अंदर होती हैं उसको स्टडी करना, एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस कि किस तरीके का फूड लेने से बॉडी में एसिडिक कंटेंट ज्यादा बढ़ता है, या किस तरीके का फूड लेने से बॉडी के अंदर pH कम होता है, ज्यादा होता है, वो उस तरीके की स्टडीज का काम होता है हमारे DFRI के थ्रू। देन डेवलपमेंट ऑफ पैक राशंस, देयर क्वालिटी एश्योरेंस मेथड। डेवलपमेंट ऑफ पैक राशंस मतलब जैसे अभी ये कोरोना का टाइम था, कोरोना के टाइम पे सारे जो किराना स्टोर्स थे, आपके जो ग्रोसरी स्टोर्स थे, जितनी मार्केट्स थी वो सारी बंद थी। अब मार्केट बंद होने की वजह से जो डेली वेजेस वर्कर हैं, जिनको डेली डेली काम करना है और डेली उनको अपने घर पे राशन लेके जाना है, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था कि पैकेट्स बनाए थे डेली यूसेज के लिए और मंथली यूसेज के लिए, कि ये एक इंडिविजुअल के घर में इस तरीके का खाना तो एटलीस्ट बनता ही है डेली। उसमें राइस है, उसमें व्हीट फ्लावर है, फिर ऑयल है, सारे तरीके के स्पाइसेस हैं, वो एक प्रॉपर पैकेट बना के जो भी डेली वेजेस वर्कर्स थे उनको सप्लाई किया गया था। तो DFRI का भी काम है टू मेंटेन एंड टू डेवलप द पैक राशंस, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ration packets has to be made and their quality has to be assured to provide to the individuals or to provide to the families। तो DFRI का काम है इस तरीके के राशन के पैक्स बनाना, उनका क्वालिटी एश्योरेंस करना और उनको आगे फॉरवर्ड करना। देन लास्ट है आपका इवैल्यूएशन एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रूप्स जो आपके आर्मी ट्रूप्स होते हैं, छोटी छोटी टुकड़ियां होती है ना, जो अलग अलग एरियाज में, एक तो पूरी बटालियन होती है, फिर उस बटालियन में भी डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स होती हैं, फिर वो डिविजन्स को भी छोटे छोटे ट्रूप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जो रात को दिन में फिर इधर उधर घूमकर सब चीजों का पता लगाते हैं, तो वो ट्रूप्स होते हैं। सो DFRI का काम है इवैल्यूएशन ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रूप्स। जो ट्रूप्स हैं उनका
कितना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको इवेल्युएट करना एंड प्रोवाइडिंग द फाइन न्यूट्रिशन। तो ये एरियाज हैं सारे। ओके सो उसके बाद आता है आपका, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। ओके नेक्स्ट आता है आपका आपका NIPCCD हो गया, FAO हो गया आपका। देन नेक्स्ट आएगा आपका केयर, CARE। केयर इज कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर is CARE. It is the major international humanitarian agency which is delivering the emergency relief and long-term international development programs. तो CARE is a international humanitarian agency. तो CARE सिर्फ इंडिया का नहीं है, that is a international agency which delivers the emergency relief and long-term implementation programs. Long-term implementation program means वो lifelong help कर सकते हैं। So the CARE was established in 2014 in 90 countries with the support of 880 poverty line workers. 880 poverty line workers. Then what are the objectives? The CARE program is developing world address a broad range of topics like emergency responses। क्या क्या emergency responses हैं, जैसे अभी कोरोना के टाइम पे पूरा पैंडेमिक था, पैंडेमिक की वजह से जगह जगह लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रहे थे, ऑक्सीजन की जरूरत थी, फिर बेड्स की जरूरत थी, फिर मेडिकेशंस की जरूरत थी, फिर डेली डेली राशन की जरूरत थी। तो इसके लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? केयर। दैट इज केयर इज कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। तो इसका काम क्या है? इट वर्क्स टुवर्ड्स द इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज, यानी कि जब बाकी और जो आपके NGOs हैं या बाकी और जो आपकी एजेंसीज हैं, दे आर अरेंजिंग फॉर समथिंग, दे हैव ऑलरेडी एवरीथिंग कि वो इमरजेंसी और सडन रिस्पॉन्स दे सके। देन फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी में आपका आता है फूड प्रोडक्शन, फूड प्रिपरेशन, फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन, ये सब आपका फूड सिक्योरिटी में आता है। The next function is water and its sanitation. Water supply किस तरीके से होना है, प्रॉपर तरीके से वाटर सप्लाई कैसे है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम्स है या नहीं है, क्लीन्ड वाटर सप्लाई हो रहा है या नहीं, वाटर जो सप्लाई होता है वो कंटामिनेटेड तो नहीं है, वेसल्स जो यूज होते हैं वाटर सप्लाई के लिए या वाटर स्टोरेज के लिए वो प्रॉपर तरीके से क्लीन है या नहीं है, जहाँ वाटर को स्टोर किया जाता है फॉर सप्लाई टू आगे वो प्रॉपर तरीके से क्लीन है या नहीं है। तो ये सब वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन में आता है। सैनिटेशन में भी आपका ड्रेनेज सिस्टम देखा जाता है, क्लोज ड्रेनेज है या ओपन ड्रेनेज है। अगर क्लोज ड्रेनेज है तो दैट इज फाइन, अगर ओपन ड्रेनेज है तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स सोसाइटी में अराइज हो रही हैं, उनका इवैल्यूएशन इज मेन फंक्शन ऑफ केयर। Then economic development. Economic development means production of the agricultural department, then production of technological department, ये सारे के सारे functions होते हैं हमारे care के। Then climate changes की वजह से क्या क्या problems होती हैं, suppose जैसे ट्रूप्स होते हैं, आर्मी के ट्रूप्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिप्लॉय किए जाते हैं। जैसे आपका कश्मीर रीजन हो गया, कोई अभी 2 महीने पहले कश्मीर में पोस्टेड था, अभी उसको झारखंड में पोस्ट कर दिया, तो ये उस इंडिविजुअल के लिए क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि सडनली वो काफी ठंड से निकलकर फिर हीट हॉट वेदर में आ जाएंगे, तो ये क्लाइमेट चेंजेस होगा। इसकी वजह से उस इंडिविजुअल को क्या प्रॉब्लम हो रही है उनका इवैल्यूएशन करना, उनके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं उनका इवैल्यूएशन करना इज द फंक्शन ऑफ केयर। ओके सो क्या क्या फंक्शंस है? इट responses immediately, that is emergency response, food safety and security, water supply and sanitation, then economic development, climate changes and development of agriculture and education, development of agriculture and education. Okay, so now the care or cooperative for assistance and relief everywhere focuses particularly on empowering and meeting the needs of women and girls and promoting the gender equality. So basically care focuses on the development of empowerment of the women and girls and promoting the gender equality. तो ये हमारा main focus and function होता है care का. Okay, so next is your नेक्स्ट आता है आपका FSSAI। FSSAI दैट इज फूड सेफ्टी, जस्ट अ सेकेंड, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
Food Safety and Standard Authority of India, or known as FSSAI. Okay, so the Food Safety and Standard Act 2006 is act to consolidate the law relating to food and its establishment of safety and security. तो FSSAI क्या काम करता है? जो food रिलेटेड एक्ट्स हैं, फूड सेफ्टी एक्ट है, फूड सेफ्टी एक्ट में क्या था? फूड अडल्ट्रेशन से ऐसी तो हुआ है आग से जला है। मुंह न पड़ते तो मैं 20 साल हो गए तो मैं करते करता हूं मुंह न पड़ते। व्हाट्स हैपनिंग हिमांशु? हिमांशु सॉरी मैम, गलती से हो गया। ओके ओके, सो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एफएसएसएआई? जो फूड अडल्ट्रेशन के लिए एक्ट था, फूड सेफ्टी के लिए एक्ट है, उनको मेंटेन करना एंड उनका इवैल्यूएशन करना इज द मेन फंक्शन ऑफ फूड एफएसएसएआई. So FSSAI have been established under Food Safety and Standard Act 2006. The act consolidates various acts and orders that have handle food related issues. जो food related issues हैं, जैसे proper supply of the nutritive food, proper supply of the sanitation items, proper supply of the water, decontaminated water, ये सारे food related issues हैं and food related items हैं. तो establishment कब हुआ था? Establishment is under Ministry of Health and Family Welfare. Functions क्या क्या है? Farming of regulations to lay down the standard and guidelines in relation to articles of food and specify appropriate system. तो appropriate system जो हमारा DFRI है, जो डिफेंस फूड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या काम करता है हमारे डिफेंस के लिए? फूड टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट करता है, फूड टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, डेवलपमेंट ऑफ फूड सेफ्टी सिक्योरिटी रूल्स है. तो उनका ये जितना DFRI का काम है, FSSAI का काम है, उसको इवेल्युएट करना एंड इम्प्लीमेंट करना इन द सोसाइटी. नेक्स्ट क्या है? लाइन डाउन प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइन फॉर एक्रीडिएशन ऑफ लेबोरेटरीज. तो लेबोरेटरीज का एक्रीडिएशन, जैसे आपका हॉस्पिटल्स है, आपका कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके एक्रीडिएशन कहाँ से हैं? INC से एक्रीडिएटेड है, फिर आपका CCS यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, फिर आपका UP स्टेट मेडिकल फैकल्टी से एफिलिएटेड है, NABA JCI हॉस्पिटल्स आपके यहाँ से एक्रीडिएटेड है. तो FSSAI का काम है हमारे जितने भी फूड रिसर्च लेबोरेटरी हैं या फिर हमारे एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी लेबोरेटरीज हैं, उनको एक्रीडेट करना, उनको एफिलिएशन प्रोवाइड करना, प्रॉपर तरीके से रिसर्च करना और उसके बाद में उनको परमिशन देना कि ओके फाइन, नाउ यू कैन कंडक्ट द रिसर्च टुवर्ड्स फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. तो ये फंक्शन है. नेक्स्ट फंक्शन इज to provide scientific advice and technical support to central government and state governments. तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं, हमारे स्टेट गवर्नमेंट है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनके अंडर जो भी फूड से रिलेटेड काम होने हैं, जैसे फूड डेवलपमेंट होना है, प्रोसेसिंग ऑफ फूड होना है, फिर सप्लाई ऑफ क्रॉप्स होना है टू डिफरेंट स्टेट. जैसे सपोज यूपी में बहुत ज्यादा शुगर केन होता है, अब शुगर केन को डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड करना है या डिफरेंट स्टेट्स में सप्लाई करना है, उसके लिए परमिशन, उसके लिए डेवलपमेंट जो भी होना है, वो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प करता है FSSAI. The next is collect and collaborate data regarding food consumption, incidences and prevalence of biological risk, contaminants in food, residues of various contaminants in food products, and identification of emerging risks. यानी कि जो हमारा FSSAI है, उसका काम क्या है? कलेक्शन एंड कोलैबोरेशन ऑफ डेटा रिगार्डिंग फूड कंजम्पशन. फूड कंजम्पशन मतलब जैसे एक कम्युनिटी है या एक जियोग्राफिकल एरिया है, उस जियोग्राफिकल एरिया के अंदर कितना अमाउंट ऑफ पीपल और कितने ग्रुप्स ऑफ पीपल रहते हैं. सपोज आपका नोएडा हो गया, नोएडा के अंदर कितनी फैमिलीज रहती हैं, कितने इसके अंदर विलेजेस हैं, उन सब का आइडेंटिफिकेशन. अब विलेजेस के अंदर कितनी फैमिलीज रहती हैं, उन फैमिलीज में कितने मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स में भी क्या क्या एजेस हैं, एजेस के अकॉर्डिंग फिर उनका बेसिक कंजम्पशन आइडेंटिफाई किया जाता है. तो FSSAI का काम है कलेक्शन एंड कोलैबोरेशन ऑफ डेटा रिगार्डिंग फूड कंजम्पशन, के एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में कितना फूड कंजम्पशन हो रहा है. इंसिडेंसेस एंड प्रिवेलेंस ऑफ बायोलॉजिकल रिस्क. बायोलॉजिकल रिस्क मतलब ड्यू टू न्यूट्रिटिव डेफिशिएंसी और ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी किन लोगों को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट प्रॉब्लम्स हैं. विटामिन A डेफिशिएंसी किस किस को है, विटामिन B डेफिशिएंसी किन लोगों में है, फिर थायमीन, विटामिन C डेफिशिएंसी किन किन लोगों में है,
प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन किन किन लोगों में है, तो इन इंसिडेंसेस को आइडेंटिफाई करना एंड प्रिवलेंसेस ऑफ बायोलॉजिकल रिस्क को आइडेंटिफाई करना। देन कंटामिनेंट्स इन द फूड, कंटामिनेंट इन द फूड का मतलब है सपोज नोएडा आपका एरिया है, उस एरिया के अंदर किस तरीके का क्रॉप डेवलप किया जाता है, किस तरीके का क्रॉप प्रोडक्शन होता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर वीट प्रोडक्शन ज्यादा होता है। अब वीट प्रोडक्शन के लिए आपको वाटर सप्लाई प्रॉपर होना चाहिए, फिर उसके लिए फर्टिलाइजर्स प्रॉपर होने चाहिए। जब फर्टिलाइजर्स डालते हैं तो उसमें कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक्सेसिव होने की वजह से क्रॉप को डैमेज कर देती हैं। तो वो क्या एक्सेस है उसको आइडेंटिफाई करना और वो फूड को किस तरीके से कंटामिनेट करता है उसको आइडेंटिफाई करने का काम होता है एफएसएसएआई का। देन कंटामिनेंट्स इन फूड प्रोडक्ट्स, जो फूड प्रोडक्ट बने हैं उसके अंदर क्या क्या मिलावट की गई है, क्या क्या एडल्ट्रेट किया गया है, इस चीज को इवेलुएट करने का काम होता है हमारा एफएसएसएआई का। देन नेक्स्ट आएगा आपका क्रिएटिंग एन इंफॉर्मेशन नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री सो दैट द पब्लिक, कंज्यूमर्स, पंचायत, जो हमारी ये सब चीजें हैं वो प्रॉपर रिलायबल सोर्सेस से पता कर सकें कि किस तरीके से हम लोगों को फूड प्रोवाइड कराया जाएगा। तो एफएसएसएआई का काम क्या होता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल को डेवलप करना। जैसे आपके कॉलेज में प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल क्या है, सपोज आप स्टूडेंट हैं, आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, सपोज आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आता है या आपकी क्लासेस नहीं होती हैं या बच्चे परेशान करते हैं, व्हाटएवर कोई भी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट टीचर को बताते हैं कि मैम और सर ये टॉपिक हम लोग को समझ में नहीं आया, ठीक है। अब आपके टीचर ने रिजॉल्व कर दिया प्रॉब्लम तो वेल एंड गुड। इफ द टीचर इज अनेबल टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, आप क्लास कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म करते हैं कि मैम हमारा ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट में ये टॉपिक है जो हमें समझ नहीं आया है, ठीक है। तो उसके बाद में आपने जब अपने क्लास कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म किया तो क्लास कोऑर्डिनेटर ने या तो आपको सोल्यूशन दे पाएंगे या फिर वो नहीं दे पाएंगे। उसके बाद आप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के पास जाते हैं कि सर और मैम आई एम द स्टूडेंट ऑफ जीएनएम फर्स्ट ईयर और मुझे इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक में प्रॉब्लम है और मैंने इन्फॉर्म किया है बट मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। उसके बाद आप अगर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ने भी सॉल्व नहीं कर पाए तो आप फिर जाते हैं वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एंड फिर सुपीरियर अथॉरिटीज। तो ये एक हायरार्की होती है, ये एक हायरार्की है कि सबसे पहले आपको जस्ट इमीडिएट ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है, फिर अगर प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो वेल एंड गुड, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो नेक्स्ट सुपीरियर, फिर नेक्स्ट सुपीरियर, नेक्स्ट सुपीरियर। तो ये काम होता है हमारे एफएसएसएआई का कि दे हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल फॉर प्रोवाइडिंग द प्रॉपर न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द होल जियोग्राफिकल एरिया। तो अभी जैसे गांव, जैसे आपके विलेजेस होते हैं, विलेजेस में कौन होते हैं, आपके प्रधान होते हैं। तो वो आप सबसे पूछते हैं, मतलब वो गांव में घूम के आते हैं, उन सबसे पूछते हैं कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी तरीके की, या किसी भी तरीके से आप बताओ किस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या आपको चाहिए, क्या काम कराना है, क्या काम नहीं कराना है। ये एक प्रॉपर जो आप जो प्रधान होता है उसका काम होता है। फिर वो क्या करता है, वो अपने सुपीरियर को बताएगा कि सर ये हमारा विलेज है, इस विलेज में हमें इस तरीके का डेवलपमेंट करना है। वो फिर अपने सुपीरियर्स को बताएंगे कि इस तरीके से ये डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट का ये वाला विलेज है, इस विलेज में ये प्रोडक्शन करना है या इस विलेज में ये इस तरीके का डेवलपमेंटल प्रोग्राम शुरू करना है। फिर वो मिनिस्ट्री में जाएगा, फिर वो मिनिस्ट्री में जाएगा। तो ये प्रॉपर चैनल होता है एक। तो सीएफ जो आपका एफएसएसएआई है उसका प्रॉपर फंक्शन, उसका फंक्शन है टू मेंटेन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल, जिसकी हेल्प से जो geographical area है, the people of that geographical area will get proper kind of nutrition and proper kind of health services। तो ये एफएसएसएआई का फंक्शन है। नाउ फूड कैटेगरीज, किस एफएसएसएआई कौन से फूड कैटेगरीज के लिए काम करता है। तो फर्स्ट फूड कैटेगरी इज योर डेयरी एंड dairy products, dairy and dairy products, fats and oils and fat emulsions, then edible ice and edible things, fruits and vegetables, confectionaries, then cereals and cereal products, bakery products, meat and meat products, fish and fish products, eggs and egg products, sweeteners, including honey, production of honey, salt, spices, soups, sauces, salads, and protein products। तो ये सारे आते हैं आपके फूड कैटेगरीज में, जिन जिन
जिनके ऊपर FSSAI की नजर रहती है कि उनकी फूड क्वालिटी कैसी है, फूड क्वांटिटी के हिसाब से पैक किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, फूड प्रिपरेशन में किस तरीके के प्रोसीजर्स एंड प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, फूड ट्रांसपोर्टेशन में किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, स्टोरेज में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सारा काम होता है हमारा FSSAI का। तो ये है हमारी फूड कंट्रोल एजेंसीज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल। ठीक है, पीपीटी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, नोट्स मैं आपको सारे प्रोवाइड करा दूंगी, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना। टुमारो वी विल बी डीलिंग विद प्रिपरेशन ऑफ डाइट एंड डाइट। वैसे एक्चुअली ये प्रैक्टिकल होना था, जो कुकरी प्रैक्टिसेस होती हैं आपकी वो लैब्स में कराई जाती हैं, किस तरीके से आपके बीवरेजेस बनते हैं, किस तरीके से शेक्स बनाए जाते हैं, एग प्रिपरेशन, ये सब आपकी प्रैक्टिकल्स हैं, प्रैक्टिकल्स आपको लैब में करने थे, बट नाउ यू आर नॉट कमिंग टू कॉलेज, तो अभी ये प्रैक्टिकल्स कैसे कराए जाएंगे,